सब आधा घंटा पानी आता जिसमें 15 मिनट पानी खराब है। काला सुनिए, काला पीला पानी आ रहा। लाइए थोड़ा पिलाएंगे लोगों को, लेकर आइए पानी, थोड़ा लाइए लोगों को पिलाइए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के वबा को फैलने से रोकने के लिए मौसर इकदाम किए हैं और वह किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयार है। राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाहों पर तवज्जो न दें बल्कि हुकूमत पर एतमाद रखें और चौकसी बरकरार रखी जाए। उन्होंने इतवार 22 मार्च को वज़ीर की तरफ से मौलाना जनता कर्फ्यू को एक अच्छे इकदाम से ताबीर किया और कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इस विभाग के बारे में किस कदर मुतफक्किर हैं। गवर्नर ने रियासती हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इकदाम की भी सिताइश की और कहा कि ज़ईफ़ अफराद और बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से रोका जाए। साथ ही साथ घरों और घरों के बाहर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। वक्फे से साबुन से हाथ धोया करें। तो सुंदरराजन ने अवाम खासकर पेशे तिब से वाबस्ता अफराद से कहा कि वो अवामी शऊर की बेदारी के लिए भी काम करें। Is the better preventive measure than any other measure which we can imagine. So be at home, but do your work at home and be thankful to the staff who are all working for us to face this alarming situation and who are all coming from abroad. They should be very cautious and they should be isolated for 14 days. And as the central government, the state government also has taken cautious measures to counter this virus. And apart from that, to show our integrity and show the courageous mindset of Indians to face this alarming situation, the Janata curfew, that is on 22nd from 7 a.m. to 9 p.m. We are going to be inside our house and in the evening we are all going to come and clap and ring the bell in thanking the medical staff. In Raj Bhavan also we are going to program that program on 5 p.m. on 22nd and even Raj Bhavan will take part in that thanking program. And apart from that, even in Raj Bhavan, we are taking cautious measures. Each and every day, all the staff's temperature are monitored and even for all the staff, even the governor, when I am coming to the office, my temperature is monitored and each and every day we have entered the temperature of all the staff and we are very cautious and sanitizers are kept in all the places and hand washing technique is taught to each and everyone and repeated hand washing and sanitizing has been taught to them and they are also very cautious. So taking cautious measures is the preventive method and prevention is better than cure. And as it is said by our Honorable Prime Minister, we being healthy, the country will be healthy. So we all should be very cautious in following the preventive measures and I should say I wish each and every citizen of Telangana, as I said, the central and the state governments has come out with lot of preventive measures and schemes so that the foreign return persons, because overall of infected here in Telangana are all returned from abroad and as a cautious measures, the country has prevented the entry of the flights from abroad and whatever may be, the self-protection is the best protection. The government can take so many precautionary measures. Unless we follow it, we cannot escape from the virus. So, serving ourselves, protecting ourselves is the service rendering to this country and we are very thankful to our Honorable Prime Minister by encouraging us to face this
alarming situation of the virus. Again, I am telling, no need to panic, but be very cautious. I should say some words to my Telangana brothers and sisters. చేతులు బాగా కడుక్కోండి, దూరాన్ని పాటించండి, ఇంట్లోనో ఉండండి, అనుమానం వస్తే డాక్టర్ని సంప్రదించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి, కానీ ఆందోళన పడకండి, ప్రభుత్వం మీతో ఉంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, ప్రభుత్వం మీతో ఉంది. సో బీ హ్యాపీ, అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ కాషియస్, బట్ డోంట్ థింక్ very careless that virus won't affect us. Be very cautious, and not only as a gardener, as a doctor, I am telling, if you face with some symptoms like cough, dryness of your throat or high temperature, you should be very cautious. If you have the feeling of sneezing, you should not sneeze like that, you should sneeze like this. If you sneeze like this, then you are intent to drop the droplets on the surfaces. So please, if you have the feeling of coughing or sneezing, please keep your hand like that, and you cough and sneeze and immediately wash with sanitizer. And please don't allow your elderly parents outside. Please protect them, because the virus will affect the elderly and the immunologically compromised patients like diabetic patients, tuberculosis patients. So protect them, and as our Honorable Prime Minister said, when we are healthy, the country will be healthy. Thank you so much. And also the Governor who has given this message. Distancing in a country which is highly densely populated, how do you think those steps can be taken, especially in slum areas, in lower income group houses, and also where there are no sanitizers available, there is no clean water available? It's a good question which creates awareness, but I should thank the media like you who are continually creating awareness among the people, and even the people of economically compromised people are viewing the televisions, and they are well aware. I have seen some of them, they are well aware, and they are distancing themselves, they are isolating themselves, and I am stressing that no need for sanitizer. Your simple soap and water is enough. So please don't long for sanitizer, and don't think that sanitizers are not available. Please take simple water and soap. So I think that adequate water and soap will be with the people, and the government has assured it will provide such sanitizing material to the people. So people should be cautious, and I am happy that people are cautious. They have learned, and as I said, the government is with them, and the doctors are serving them, and they are very confident, I should say. Thank you very much. मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के करीब एक मकान से 8 इंडोनेशियाई बाशिंदों को पुलिस ने कोरोना वायरस के शिबे में हिरासत में लेकर गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। बताया जाता है कि इत्तला मिलने पर हबीबनगर पुलिस ने एम्बुलेंस कैमरा मकान पर छापा मारा। ये इंडोनेशियाई बाशिंदे जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था, हैदराबाद के दौरे पर आए हुए थे। इनमें से 2 के कोरोना वायरस पॉजिटिव साबित होने की इत्तला मिली है। इसी दौरान मल्लेपल्ली मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने बताया कि दौरा कुनिंदा इंडोनेशियाई बाशिंदे कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है, सिर्फ झूठी इत्तला और शुबे की बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लेकर दवाखाने को जबरदस्ती मुंतकिल किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मल्लेपल्ली के पूरे इलाके में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई और फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सलीम अहमद, मल्लेपल्ली जामे मस्जिद मौजमपुरा मल्लेपल्ली का सेक्रेटरी हूँ। कुछ मैसेज जो है गलत सलत मीडिया पे फैला दी है, जिसकी वजह से महल्ले का नाम और मल्लेपल्ली मस्जिद का नाम बदनाम हो रहा। कुछ लोग जो है करीम नगर में डिडक्ट हुए बोल के ऐसा सुनने में आई बात, उनके साथ या मल्लेपल्ली मस्जिद में 3-4 दिन से है
और उनके ख़वातीन भी जो है ख़वातीन मंजिल में थे और मदरसे निस्वान का बोर्ड बता रहे हैं, मस्जिद का बोर्ड बता रहे हैं, ऐसे तरीके से जो है वो कर रहे हैं। आप लोग कोई बात पे वो लोग को करिए। अभी ये 4-8 लोगों को लेके गए, अभी डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ अभी रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि डिडक्ट हो गया, नहीं हुआ। गैर ज़रूरी अफवाहें फैला रहे हैं और कमिश्नर साहब से मेरी ख़ास अदबन गुजारिश है कि ऐसे झूठी अफवाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। आज पूरा मोहल्ला परेशान है, हमारा पूरा मल्लेपल्ली मोहल्ला परेशान है और कल जुम्मा है और जुम्मे की नमाज़ ठीक 1:35 को होंगी और सब हजरात अपने अपने घरों से वज़ू बना के आइए और नमाज के साथ ही सुन्नत वगैरह सब अपने अपने घरों में अदा करिए, ताकि हुकूमत की तरफ से भी ये ऑर्डर्स है कि आप। लोग कहाँ से आए थे? ये लोग जो है इंडोनेशिया से आए थे सब। ये इंडोनेशिया से जमात आई थी। जमात में जो है कुछ लोग करीमनगर में थे, कुछ लोग यहाँ थे और करीमनगर में कुछ डिडक्ट हुए बोल के बोल रहे हैं। अब वो वहाँ से उनसे पूछे कि और आपके कहाँ हैं साथियाँ, बोले तो मल्लेपल्ली मस्जिद में है। मल्लेपल्ली मस्जिद में है बोले तो आज जोहर से पुलिस अपना काम करी और बल्दिया अपना काम करी और पूरे टीम आए। शाम में जो है एम्बुलेंस वगैरह आई। अब उन लोगों को पूरों को टेस्ट करने के लिए लेके गए। अब उसको इतना बड़ा इशू बना दे के पूरे महल्ले का नाम बदनाम और पूरा जो है दुकान वाले परेशान। मेरी फिर अदबन गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि ऐसे झूठे अफवाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करिए आप। ये देखिए मस्जिद बिल्कुल इंतहाई साफ़ सुथरी है और हम फिर सुबह में पूरा क्लीन कर देंगे और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, कोई हैबत खाने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे महल्ले वालों को और ना महल्ले वालों को भी जो है हकीकत मालूम है इसकी। मगर गैर ज़रूरी पूरी दुनिया से दुनिया के हर कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ बोल के। हालांकि हकीकत कुछ भी नहीं है, मगर उसको जो है बाज़ लोग गलत तरीके से पेश कर दिए। अब वो रिपोर्ट आएंगी करेंगी और सब पुलिस देखेंगी, बल्दिया देखेंगी, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट देखेंगी। मगर झूठी अफवाह फैलाने से क्या मिलेगा आपको? एक तो मस्जिद बदनाम हो रही और वो दीनी मदरसा है, मदरसे निस्वान जो है दीनी मदरसा है, उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो गरीब गुरबा बच्चियों का जो है मदरसा है, उसमें ना वो औरतें थे ना कुछ। वो बाजुक की बिल्डिंग है जिसमें थे और वो भी टेस्ट करने लेके गए। अभी रिपोर्ट नहीं आई, उसकी रिपोर्ट आए बाद मालूम होगा। तो लिहाजा ना महल्ले वालों को डरने की ज़रूरत है और ना झूठी अफवाह फैलाने वालों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ ये अपनी चैनल पर जो है दुरुस्त करे अफवाह को। कोरोना वायरस से बचने एहतियाती इक़दाम को अहमियत देते हुए बेगम बाजार बेदरवाड़ी वेलफेयर कमेटी ने आज बाद नमाज जुमा पूरे इलाके में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत होम्योपैथी की मुफ्त दवाएं तकसीम की। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हारून रशीद खान ने बताया कि ताहाल दवाओं की 2000 से ज़ायद शीशियां तकसीम की गई हैं। मोहम्मद लियाकत अली और दूसरे मकामी अहसाब ने भी इस काम में ताउन किया है। रशीद खान बैद वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कोरोना वायरस के वबा की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। अब हमारी कमेटी की जानिब से और हमारी जानिब से हम ये तय करे थे कि 2-3 ये तो हंगामी हालात है कि कोरोना, हम अखबारों में पढ़े कि एंटी कोरोना एक दवा जो है तो सागर होम्योपैथी वाले बनाए, तो वो तकसीम करेंगे हिंदू और मुसलमानों में बोल के हम लोग तय करके कल से जो है तो घरे घर बंटवाए हैं बैदवाड़ी, मेवातीपुरा, मुल्तानीपुरा और अतराफ़ के महलों में हिंदू और मुसलमानों में। क्योंकि आज जुमा है इसलिए हम लोग जो है तो बेगम बाज़ार की मस्जिद, शहाबुद्दीन की अड्डे की बेगम बाज़ार की मस्जिद और जो है तो बेगम बाज़ार मुसंजंग ब्रिज के पास की मस्जिद और सुबानपुरे की मस्जिद और मंगल हाट की मस्जिद, चूड़ी बाज़ार की मस्जिद हमारे में, और यहाँ पर झांसी बाज़ार, जिनसी चौराहा मस्जिद, चांदतारा मस्जिद, ये बड़ी मस्जिद यहाँ पर हमारी जामा मस्जिद है बैदरवाड़ी मेवातीपुरा बीच में, जिनसी चौराहे की मस्जिद। इस तरह से 15-20 मसाजिद में हम लोग ये एक बॉटल जो है कोरोना एंटी कोरोना है, इसमें ये 2 दिन की जो है तो 2 आदमियों के लिए एक कोर्स है 6 दिन का, यानी जो 12 दिन की दवा है। एक आदमी सुबह में 6 गोली, दोपहर में 6 गोली, शाम में 6 गोली, इस तरह से 6 दिन तक खाना है। तो इसमें 12 दिन की दवा है। एक बोतल 2 आदमी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जब घरे घर सप्लाई किए हैं, किसी घर में 5 है, 6 है तो 3 दिए, किसी घर में 20 है तो 10 बोतल दिए।
इस तरह से हमारी कमेटी और हमारी जानिब से हमारे बड़े भाई के ताउन से, लियाकत अली खां के ताउन से अब तक हम लोग 2500 के करीब बॉटल बांट चुके हैं और कुछ डिमांड आ रहे इंशाल्लाह और महलों में भिजाएंगे ताकि जो है तो ये जो वबा है, वबा से हिंदुस्तानी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब महफूज रह सके। आप लोग हमारा इंटरव्यू लिए और लोगों के पास बात पहुंचा रहे, इसके लिए शुक्रिया। सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक टिमरीज की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात में दाखिलों की आखिरी तारीख को 28 मार्च तक तौसीह दे दी गई है। उन्होंने औलिया तलबा से अपील की कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें और मजीद मालूमात के लिए टिमरीज के दफ्तर हेल्पलाइन नंबर 040-234-7909 पर रब्त पैदा करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस से मुतासरा जिले करीमनगर का कल हफ्ते का दौरा करेंगे और वहां इस मर्ज पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लेंगे। वो प्रोग्राम के मुताबिक आज करीमनगर का दौरा करने वाले थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था। चीफ मिनिस्टर की आमद के पेश नज़र कलेक्ट्रेट और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों को अमलन लॉकडाउन कर दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 23 मार्च तथा 30 मार्च होने वाले SSC के इम्तिहानात को मुलतवी करने और असर-ए-नौ निज़ामुल अमल बनाने की हिदायत दी है। ताहम अदालत ने कहा कि कल हफ्ते को जो इम्तिहान मुकर्रर है वो प्रोग्राम के मुताबिक जारी रह सकता है। मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने रियासती हुकूमत को ये हिदायत जारी की है। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों को मास्क पहनकर इम्तिहान तैयारी करने की इजाज़त दी जाए और कहा कि कल के इम्तिहान के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो वसीतर इंतजाम करे। पुराने शहर के कई इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत के बाद मजलिसी कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी ने आज वाटर वर्क्स के मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ मस्जिद अलाउद्दीन मुगलपुरा, फायर स्टेशन, बी बाजार चौरस्ता, मस्जिद फिरदौस, कोटला अलीजा, चमेली का मंडवा और दूसरे इलाकों का दौरा किया और इस मसले के हल की फौरी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के पेश नज़र सरबराहियाब के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस दौरे में वाटर वर्क्स के GM खादर मुहिउद्दीन, डिप्टी GM शंकर, मोहम्मद जाकिर, मैनेजर श्रीनिवास, GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माजिद के अलावा मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। वाज़ेह रहे कि असम्बली हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों खासकर टोली शोकी में भी आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत मिली है। रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने खुद बनफ्स नफीस कई इलाकों का दौरा करते हुए इस मसले का जायजा लिया। कोरोना वायरस की विबा के आम होने के पेश नज़र बल्दिया और वाटर वर्क्स को साफ सफाई और साफ पानी की सरबराही करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि खुद हुकूमत भी इस मसले पर तमाम महकमों को चौकसी की हिदायत दी है। बोलते तो आपको जरा एहसास होता, आपके घर में अच्छा पानी आता ना, आपको एहसास नहीं है। आपको सब उधर से जो पानी आ रहा ना साहब, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। कितनी मरतबा आए तुम यहाँ पर? कितने मरतबा आए? तीन चार मरतबा आए। आप यहाँ मुगलपुरा आके कितना टाइम हो गया? फिर ये सब बात नहीं करना। अगर आप काम नहीं कर सकते तो जरूरत नहीं है मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पानी अगर सही नहीं पहुंचा सकते आपका जो काम है मैं वही काम ले रहा हूँ, उससे हटके काम नहीं ले रहा हूँ। देखिए हमारे GM साहब घर में लेडीज रहती है, उनको जितना अच्छा मालूम है टाइमिंग का और किसको भी नहीं मालूम है। साहब आधा घंटा पानी आता है जिसमें 15 मिनट पानी खराब है। काला सुनिए, काला पीला पानी आ रहा। लाइए थोड़ा पिलाएंगे लोगों को, लेकर आइए पानी थोड़ा लाइए, लोगों को पिलाएंगे। हमारे DGM साहब को पिलाएंगे पहले। पानी लेके ये परसों रखे हमारे घर में भी पूरा मशीन से पानी देखिए साहब, ये पानी का हल्का आप बताइए इनको पिलाना।
डेली पानी बाहर से ला ले रहे, टैंकर आए तो वहाँ से टैंकर उठा के ला ले रहे पानी, मगर कब तक करेंगे ये? मेन प्रॉब्लम और इधर से उधर से दे दो पानी ये लोग को, इन लोग मुझ पे नहीं इधर करेंगे करके ये अगर भाई बोल सुबह देखिए साहब, हमारे सीएम साहब, एक मिनट देखिए। बोला जो बात बोलो। हाँ, जो बात डायरेक्ट जाना था, आप ही जंगल में जाना था, उससे 3 गुनी डबल को पानी नहीं आना था जी। तो अपन बात आप कर सकते हैं, घर की खवातीन को क्या मालूम है आप बोलिए? इनको पानी आना, इनके पास जो टाइम टेबल का मसला है वो अलग एक बात सुनिए साहब, आप अल्लाह के वास्ते सुनिए। रमजान है, रमजान के लिए उसका अभी से आप कुछ काम करिए आप प्लीज। हमारे डीजीएम साहब इधर आइए, श्रीनिवास, रमजान है, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं अगर आप पानी का लास्ट ईयर के वैसा करेंगे मैं प्रॉब्लम दूंगा। मैं तुमको सीरियस बोल रहा हूँ, मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ। आप बात सुन लो आप मेरी। लास्ट रमजान में जितना परेशान रही है लोग, हमारे डीजीएम साहब, रमजान में अगर आप पानी सही नहीं देंगे, जितनी तकलीफ आप पब्लिक को देंगे उससे ज्यादा तकलीफ आपको दूंगा। मैं बोल दे रहा हूँ सीरियस में। पानी आ रहा नहीं आ रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मैं याली दूल्हा कराया तो मैं गलियों में, बात की जिम्मेदारी साहब आप मेरे को नहीं बोलना। क्या साहब, हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं करना, मैं बोल दे रहा हूँ। मैं आप एक बात सुनिए, घरों के अंदर पानी सही नहीं आ रहा, कचरे का अंबार वैसे यहाँ पर, लाइट का प्रॉब्लम वैसे यहाँ पर, हर चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पर। मगर सबसे अहम इशू घरों के अंदर पानी का। औरतें क्या बाहर लाके पानी बाहर से भरेंगे क्या साहब? क्या बात है? अगर आप पानी साफ दे दो साहब, आपका जो काम है डीजीएम साहब, आपका जो काम है आप करिए बस। अगर आप लोग अगर नहीं करें तो मैं बोल रहा हूँ सीरियस, नहीं भी याली दूल्हा कराया था मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं कराना साहब, यहाँ पर देखिए आप पूरे परेशान है घर के लोग। हमारे साहब बोलते हैं लोग, आप लोग आए जब पूरा भाषा खतरे आए जब बोलते थे और 8 दिन में आप लोगों का काम करना था, मगर उसके अभी मुमताज अहमद खान साहब इनको बातें करे। अभी मेरे को अभी यहाँ इमीडिएट भेजे, पहले जाओ अलाउद्दीन मस्जिद के पीछे। हमारे डीजीएम साहब जरा नोट करो साहब। अगर आप एक बात सुनो साहब, अम्मा देखिए, हमारे डीजीएम साहब, आपके घर की लेडीज, आपकी वाइफ या आपकी मदर, आपके सिस्टर अगर घरों में पानी नहीं आया तो बाहर से लाना पानी। नहीं लाना, क्या पूछा मैं आपसे? लाना नहीं साहब, नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी मदर बाहर से पानी भरना या आपकी वाइफ भरना या मेरे घर के औरतें भरना, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सब कहाँ से ला रहे हैं साहब पानी उतनी दूर से आके? 23-1- श्रीनिवास प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ श्रीनिवास साहब, आप काम करो, आप अल्लाह के वास्ते काम करो, नहीं तो फिर मैं बात की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तकलीफ दूंगा, मैं खुला बोल रहा हूँ। मैं माजे साहब ले लो ना। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कोरोना वायरस की वबा के खतरे के बावजूद तारीखी मक्का मस्जिद में आज हजारों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। नमाज से कबल मक्का मस्जिद की मुकम्मल सफाई की गई थी और अतराफ अकनाफ के इलाकों में दवाओं का जबरदस्त छिड़काव किया गया था। मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी ने मीडिया को बताया कि नमाज जुमा के दौरान खुतबा और नमाज को मुख्तसर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो बड़े इज्तिमात के इनेकाद और उसमें शिरकत से गुरेज करें। शब मेराज के मौके पर भी जलसों के बजाय घरों में नवाफिल अदा करने को तरजीह दे। रिजवान कुरैशी ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि वो हुक्काम के साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि हुकूमत का हर इक़दाम मफाद आमा की खातिर में होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम व सामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया में कोरोना वायरस के नाम से जो मर्ज़ फैल रहा है ये अल्लाह की तरफ से है और इससे मुताल्लिक़ हम सबको एहतियात करनी चाहिए। और जितना हुकूमत की तरफ से और हमारे क़ायदीन की तरफ से और मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से जो हमसे एहतियाती तदाबीर हमको बताए जा रहे हैं, हमको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और आज यहाँ पर मक्का मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की गई है और बहुत ही एहतियात के साथ लोग मुसाफ़े से भी गुरेज़ किए हैं और नमाज भी मुख्तसर अदा की गई है। खुतबा और तमाम नमाज से मुताल्लिक़ जितने भी इबादतें होते हैं सब मुख्तसर कर दिए गए हैं। तो मैं इस सिलसिले में, चूँकि हमारे पास इतवार के दिन शब मेराज का भी मौका आ रहा है, तो मैं तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से, हमारे हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर, क्योंकि हमारे पास इज्तिमात होते हैं कसीर और बरस से होते हैं और मेराजुन्नबी का जो मौका है वो तो हम सबको उस बात का इल्म है। और इस सिलसिले में हम घरों में, मसाजिद में और मुख्तलिफ़ मकामात पर जलसे में हम शिरकत करते हैं, बहुत बड़े इज्तिमात मुनक़िद करते हैं। तो चूँकि आज जो वायरस फैला हुआ है सारी दुनिया में, तो इससे एहतियात के लिए हमको, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इज्तिमा से हम थोड़ा सा गुरेज़ करें। और चूँकि इबादत का मौका है, वो जितना हो सका अपने घरों में इबादत करें, मुख्तसर सी महफ़िलें अपने घरों में मुनक़िद करें, कसीर इज्तिमा से गुरेज़ करें और मसाजिद में आकर रात तमाम जागते हुए मस्जिद को यानी इज्तिमा से भरे रखना, इससे हम गुरेज़ करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। और इस सिलसिले में जैसा कि हमारे इस्लाम में और मज़हब में है कि अमन वाला मज़हब है हमारा और दूसरों को यानी भलाई का और खैरख़्वाही का तालीम देने वाला मज़हब है हमारा। तो इस सिलसिले में दूसरे अक़वाम को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एतराज़ का मौका ना मिले हमारी इस हरकत से। तो मैं आम्मतुल मुस्लिमीन से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में अपने इज्तिमात को महदूद कर दें और अपनी इबादतों को अपने घरों तक महदूद रखें, मसाजिद में और बड़े बड़े इज्तिमात में हाज़िर होने से इज्तिनाब करें। ये हमारे लिए भी बेहतर होगा और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए बेहतर होगा और खैरख़्वाही का बायस बनेगा। तो मैं तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से अपील करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसी मुहलिक बीमारी से हमारी हिफाजत करें, तमाम दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करें और तमाम मुसलमानों के मज़ाहिब के मानने वाले लोग जितने भी है, सारी इंसानियत की अल्लाह ताला हिफाजत करे और सारी मज़ाहिब के लोगों की अल्लाह ताला इस बीमारी से हिफाजत करे। और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला वाजिला अता फ़रमाए और जो बीमारी से दूर हैं अल्लाह ताला उनको ताहयात दूर रखे और हम सब की हिफाजत करे, हमारे शहर की, हमारे रियासत की, हमारे मुल्क की, अल्लाह ताला इसके रहने वालों की सबकी हिफाजत करे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोरोना वायरस के चलते कई जगह लॉकडाउन के सबब रियासत में ग्रेनेड की सनत एक बहरान से दोचार हो गई है और ग्रेनेड के एक्सपोर्ट का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पोकारना ग्रेनेड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम चंद जैन ने कहा कि इससे पहले कि इस वक्त हालात नॉर्मल हो, आने वाले दिनों में इस कारोबार के मजीद मुतासिर होने और लोगों के बेरोजगार हो जाने का खदशा लाक हो गया है। करीमनगर, खम्भम और वारंगल अजला में ग्रेनेड्स का कारोबार काफ़ी चलता है। ग्रेनेड्स को ब्लॉक में तब्दील करके उसे चीन को रवाना किया जाता है और फिर चीन से यही पत्थर यूरोप और अमेरिका की मार्केट तक पहुंचता है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में 800 आदमी काम करते हैं और उनकी तनख्वाहों का इन्हिसार ग्रेनेड निकालने और उसे पॉलिश करने पर मुनहसर होता है। मगर चूंकि अब ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है और ना ही सप्लाई हो रही है, इन अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आम हालात में यौमिया 100 से ज़ायद चीनी ताजरों से उनकी मामलतें होती थीं और अब तो एक से भी नहीं हो पा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनेड्स एंड स्टोन इंडस्ट्री
के जनरल सेक्रेटरी कृष्णा प्रसाद के मुताबिक हिंदुस्तानी कंपनियों का भारी पैसा यूरोप और दूसरी मार्केट में फंसा हुआ है, जो तकरीबन 1500 करोड़ के करीब है। जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निकलता है और इस सनत से तकरीबन 25 लाख अफराद वाबस्ता हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।